زارا جو نیند کی وادیوں میں تھی اپنی ماں کی مہربان آواز پر اٹھ بیٹھی، کیونکہ آج اس کو کالج جلدی جانا تھا، ضروری اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا اور پھر وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ اپنے پیارے گاؤں چلے جاتے۔ ہر سال اس کی یہی روٹین تھی۔ اس کے والد سرکاری اسکول ٹیچر تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن شہر میں اپنی خالہ کے پاس پڑھ لکھ کر جوان ہوئے، وہیں نوکری حاصل کی اور پھر خالہ نے اپنی پسند کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کروا دی۔ خالہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے منصور احمد کو ہمیشہ اپنے سگے بیٹے کی طرح چاہا اور رکھا۔ لیکن منصور احمد کی سگی والدہ اپنی بہن سے ہی خائف رہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے اس کے پڑھے لکھے بیٹے پر قبضہ جما لیا ہے اور اس کی شادی کروانا تو ان کا اپنا حق تھا، وہ بھی چھین لیا۔ اکثر و بیشتر وہ اپنی بہن شاہدہ کو بے اولادی کے طعنے دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی اور کہتی تھی کہ جس کے نصیب میں اولاد نہ ہو وہ کسی کی اولاد چھین کر ماں باپ نہیں بن سکتا۔ شاہدہ بھی شروع سے ہی شکر گزار اور صبر والی خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی بڑی بہن کی باتوں کا برا نہیں منایا۔ ابھی منصور احمد کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی والدہ نے اپنی بیماری کا جھوٹا ڈرامہ ایسی صفائی سے رچایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ انہوں نے عیادت کے لیے آئے ہوئے منصور احمد اور اس کے شہری ماں باپ کو جذباتی طور پر اتنا بلیک میل کیا کہ وہ اس کی دوسری شادی پر راضی ہو گئے۔ زہرا جو ان کی پہلی بیوی اور ان کے 3 بچوں کی ماں تھی، وہ اس صدمے سے چپ رہ گئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر منصور احمد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ منصور احمد نے دل سے ہمیشہ انہیں ہی چاہا ہے اور دوسری شادی ان کے لیے ایک مجبوری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ منصور احمد کی دوسری شادی ان کی پھپھی ذات سے ہوئی، جو ان کی ماں کی پسند تھی اور انہی کی طرح تیز ترار اور شاطر تھی۔ وہ آئے دن بہانے تلاش کر کے منصور احمد کو گاؤں بلائے رکھتی۔ اگر منصور احمد انکار کرتے تو ان کی ماں انہیں دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دے کر انہیں بلا لیتی۔ گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا جابر علی انہی کا کلاس فیلو تھا، لیکن وہ شروع سے ہی ان سے کھار کھاتا اور ان کے لیے نت نئی مصیبتیں کھڑی کرتا تھا۔ منصور احمد اپنی ماں اور بیوی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے کہ وہ چل کر ان کے ساتھ شہر میں رہے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتی۔ دونوں ساس بہو مل کر ہر بار ایسی کوشش کرتی جس کی وجہ سے منصور احمد زہرا کو طلاق دے دے، لیکن منصور احمد سختی سے ڈٹے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی پہلی شریک حیات عین ان کے معیار پر بھی پورا اترتی تھی اور اس کی نرم طبیعت انہیں اپنے سوا کہیں اور جانے پر بھی راضی نہیں رکھتی۔ جب بھی منصور احمد ماں اور بیوی کے ہاتھوں پریشان ہو کر شہر واپس پہنچتے تو وہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں پیار سے سمجھاتی کہ وہ لوگ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کا برا مت منایا کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پھپھی ذات سے بھی ان کے 2 بیٹے پیدا ہو گئے۔ منصور احمد چاہتے تھے کہ وہ دونوں لڑکے اچھا پڑھ لکھ کر اچھا انسان بن جائیں، لیکن دادی اور ماں کے لاڈ پیار نے انہیں گاؤں کے دیگر لڑکوں کی طرح نکما اور آوارہ بنا ڈالا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر جلتے کڑتے اور تکلیف میں مبتلا رہتے کہ یہ ماسٹر منصور احمد کی اولاد تھے۔ زہرا سے ان کے 2 بیٹے تھے، مگر دونوں اپنی تعلیم میں مگن رہتے اور ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کو سب سے پہلے رکھتے۔ کبھی دونوں کی طرف سے کسی نے شکایت نہیں کی تھی، اسی لیے منصور احمد کو زہرا اور اس کے بچے اپنی جان سے پیارے تھے۔ دوسری طرف ان کی پھپھو زاد ارم تھی، جس نے اولاد کے سامنے بھی باپ کی کبھی عزت نہیں کی اور نہ ہی ان کو باپ کا احترام سکھایا۔ یہی وجہ تھی کہ منصور احمد چاہتے تھے کہ وہ گاؤں بار بار نہ جائیں، لیکن ماں ہر بات پر مجبور کر دیتی اور اب تو انہوں نے ایک نئی ضد پکڑ لی تھی کہ جب بھی زہرا کی چھٹی ہو اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں آئے۔ دادی زہرا سے زیادہ محبت دکھاتی اور ان کا ذہن بنانے کی کوشش کرتی کہ اگر وہ گاؤں میں ان کے پاس رہنے لگے تو اس کا باپ بھی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا۔ زہرا یہ سب دیکھتی اور جانتی تھی، لیکن خدا کی بندی نے کبھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ وہ اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی کہ وہ دادی اور چھوٹی ماں کو ان کی اسی طرح عزت کریں جیسے اپنی بڑی دادی اور سگی ماں کی عزت کرتے ہیں۔ منصور احمد زہرا کو اپنی بائک پر لے کر گاؤں جاتے۔ اکثر راستے میں جابر علی کا بیٹا فیضان ان کو ٹکرا جاتا۔
फैजान की ज़ारा में दिलचस्पी मंसूर अहमद से छुपी नहीं थी, लेकिन वो गांव के वडेरों की खसलत को जानते थे, इसीलिए वो अपनी बेटी को उससे छुपा कर रखने की कोशिश करते। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। वक्त दूर खड़ा हंस रहा था। ज़ारा गांव पहुंची तो दादी ने बाहें फैलाकर उसका इस्तकबाल किया और उसके वारिस सदके होने लगी। इरम की कोई अपनी बेटी तो थी नहीं, इसीलिए उनका रवैया भी ज़ारा से ज्यादा खराब नहीं था, बल्कि कभी उससे बेहद मोहब्बत से पेश आती। लेकिन मंसूर अहमद को ये सब एक दिखावा ही लगता, क्योंकि वो बचपन से ही इरम की तबीयत से वाकिफ थे कि इरम सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाली औरत है। इस बार जब वो गांव पहुंचे तो उनके बेटे बाकिर और हुनैन ने एक नया वबाल उनके लिए खड़ा कर रखा था। उनका झगड़ा जाबिर अली के मुंशी से काफी अरसे से चल रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने गलती ये की थी कि मुंशी के बेटे को जाकर पीट डाला। जाबिर अली ने पंचायत बुलाकर मंसूर अहमद को बहुत सख्त बातें सुनाई थी और कहा था कि मास्टर होकर अपनी औलाद की तरबियत करना कैसे भूल गए। ये बातें मंसूर अहमद के दिल को बहुत बुरी तरह घायल कर गई। उन्होंने वक्त के तकाजे के मुताबिक खुद मुंशी और उसके बेटे से माज़रत कर ली। वो बड़े दुखी दिल के साथ घर पहुंचे तो अपनी माँ और बीवी से शिकवा किया कि वो तो दूसरों के बच्चों को तालीम देते अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे ही घर में ना सिर्फ अच्छी तरबियत से महरूम है, बल्कि गलत सोहबत में पड़कर अपने बाप को गांव वालों की नज़रों में शर्मिंदा कर रहे हैं। बजाय इसके कि मंसूर अहमद की माँ उनके हालात को समझती, उन्होंने वावेला मचाना शुरू किया कि ये सब तुम्हारी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। अगर तुम शहरी बीवी के पल्लू से निकलकर गांव की बीवी और बच्चों के हालात पर तवज्जो देते तो तुम्हारे बच्चे बिगड़कर ऐसे ना होते। इरम ने भी मौका मुनासिबत देखकर रोना पीटना डाल दिया। मंसूर अहमद बड़े परेशान हुए और अपनी बेटी से कहा कि वापसी की तैयारी करे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के जहन में भी बुरे असरात पड़े, इसलिए वो जल्द अज जल्द अपनी बेटी को लेकर शहर जाना चाहते थे। उन्होंने दबे लफ्जों में इरम और अपनी माँ से साफ कह दिया कि अगर यही हालात रहे तो अगली बार वो गांव नहीं आएंगे और ना ही उनके बच्चे कभी गांव आएंगे। इस बात पर इरम ने ज़हरा को और उसके बच्चों को बद्दुआएं देना शुरू कर दी और माँ ने भी बेटे और बहू को सख्त सुनाई। ज़हरा ये सब देखकर हैरान रहने लगी और सोचने लगी कि अम्मी का दिल कितना साफ है कि वो हर बार ज़हरा को ये तलकीन करके भेजती हैं कि अपनी मोहब्बत और खिदमत से माँ और दादी का दिल जीत ले। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है, इसीलिए वो भी बुझे दिल के साथ अपने बाप के साथ शहर वापस पलट गई, कभी गांव वापस ना जाने का तहैया करके। जैसे किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता, इसी तरह एक रोज कॉलेज से वापसी पर फैजान ने उसको देख लिया और मुसलसल घर तक उसका पीछा किया। ज़हरा का दिल एक नन्ही चिड़िया जितना था। वो परेशान तो बहुत हुई, लेकिन उसने घर में अपनी माँ और बाप से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। गुस्सा हराम होता है, ये बात ज़हरा जानती थी और अपने भाइयों की तबीयत से भी वाकिफ थे, क्योंकि वो दोनों ज़हरा को एक शहजादी की तरह रखते। ज़हरा भी बड़े भाइयों की हर बात को सर आंखों पर रखती। बहन भाइयों का प्यार मिसाली था। फैजान ने जब ज़हरा को अकेले कॉलेज जाते देखा तो वो हर रोज कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता और बार बार ज़हरा से कहता कि वो उसके साथ चले, वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन ज़हरा हर बार सख्ती से उसे जवाब देकर निकल जाती। फैजान दिल ही दिल में ज़हरा से मोहब्बत करने लगा था और चाहता था कि ज़हरा भी उसका मुस्बत जवाब दे, लेकिन ज़हरा जानती थी कि गांव के वडेरे की उसके बाप के साथ हमेशा अनबन रही है और वो जानबूझकर उसके बाप मंसूर अहमद को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। इसीलिए फैजान से गुरेज जरूरी था। एक रोज तो हद ही हो गई जब फैजान ने गाड़ी से उतरकर ज़हरा का रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लगा, तो ज़हरा ने तंग आकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बस यहाँ आकर फैजान का जवाब दे गया और उसके अंदर का वडेरा बाहर आ गया। अब ये लड़की उसकी जिद बन गई थी। उसने जाते वक्त ज़हरा को धमकी दी कि अब वो किसी भी कीमत पर उसको हासिल करके रहेगा। शाम होते ही मंसूर अहमद के पास जाबिर अली का फोन आ गया। उसने सीधा ज़हरा के रिश्ते की बात की और कहा कि ये रिश्ता वो अपने बेटे की ख्वाहिश पर मांग रहे हैं। मंसूर अहमद ने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि उनकी बेटी इस रिश्ते पर राजी नहीं है, साथ ही उनकी बेटी अभी अपनी तालीम मुकम्मल करेगी। जाबिर अली का बस मंसूर अहमद पर कभी नहीं चला।
लेकिन ये वाकया उसके लिए अब इज्जत जिल्लत का मामला बन चुका था कि गांव के एक मामूली से मास्टर ने उसके बेटे से रिश्ता करने से इनकार कर दिया। इस बात को 10-15 दिन गुजरे थे कि अचानक मंसूर अहमद की मां का घबराए हुए फोन आया कि उनके बेटे बाकिर अली और हुनैन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मंसूर अहमद ये सब कुछ सुनकर छोड़ छाड़ कर सब गांव भागे। वहां जाकर उनका सर चकरा कर रह गया क्योंकि बाकिर और हुनैन पर खून का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मुंशी का इकलौता बेटा मारा जा चुका था और उसके खून का इल्जाम बाकिर और हुनैन पर लगाया गया था। वो भागम भाग थाने पहुंचे और थानेदार से बात करने की कोशिश करने लगे तो थानेदार ने उन्हें जलील करके थाने से निकाल दिया। वो बाप थे, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर फौरन मुंशी के पास गए और उससे सुलह सफाई की कोशिश करने लगे। लेकिन एक तो मुंशी गमज़दा था और दूसरा उसके पीछे जाबिर अली और फैजान खड़े थे। उन्होंने मुंशी को सुलह से मना कर दिया और कहने लगे इस कत्ल का फैसला अब उनकी पंचायत ही करेगी। ये सुनते ही मंसूर अहमद के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो एक कमजोर बाप थे, उनको बाकिर और हुनैन से मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी गई। कत्ल का मुकदमा इस कदर मजबूती से दाखिल किया गया था कि अगर अदालती कार्रवाई होती तो दोनों को ही फांसी की सजा हो जाती। उनकी बीवी इरम और माँ का हाल बहुत ज्यादा खराब था। अब फिर उन्होंने अपनी माँ और इरम से कहा कि वो इसी वक्त से डरते थे और इसीलिए चाहते थे कि वो शहर चलकर एक साथ रहे। ज़हरा के दोनों बेटे अरहम और जीशान भी बेहद दुखी थे, लेकिन बाप ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो गांव हरगिज नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते थे कि गांव के लोग दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिलाखिर पंचायत कायम हो गई। उसमें मौजूद सारे सरपंचों ने ये फैसला किया कि अगर मंसूर अहमद को अपने बेटों की आज़ादी चाहिए तो वो अपनी बेटी ज़हरा का निकाह मुंशी के साथ कर दे। ये सुनकर मंसूर अहमद के सर पर आसमान टूट पड़ा। अपने सर पर ओढ़ा हुआ रुमाल लेकर मुंशी के कदमों में बैठ गए। मुंशी की नजरें फैजान और उसके बाप पर लगी थी। उन्होंने इशारा किया, वहां से उठकर चला गया। मंसूर अहमद हारे हुए जवारी की तरह घर वापस पलटे तो उनकी माँ और बीवी मुंतजर थी कि पंचायत में क्या फैसला हुआ। उन्होंने माँ को बताया कि अगर वो अपनी बेटी की कुर्बानी दे दें तो उनके पोतों की जान बख्शी हो जाएगी। ये सुनते ही दादी फौरन कहने लगी, हाँ तो बहन अगर अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दे दे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी हमेशा से गांव में यही दस्तूर चलाया है कि कातिल की बहन वनी में दे दी जाए तो कत्ल की सजा माफ हो सकती है। और यहाँ पर तो सवाल दो भाइयों की जिंदगी का है। अगर इरम की अपनी सगी बेटी होती तो वो ये कुर्बानी देते हुए जरा ना सोचती। मंसूर अहमद अपनी माँ के कठोरपन पर हैरान रह गए। इरम पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। वह ज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी कि जाओ मेरे बेटू को वापस ले आओ। कई रोज तक मंसूर अहमद घर में ही खामोश पड़े रहे। फिर वो चुपचाप हवेली जा पहुंचे। वो जाबिर अली से भलाई की उम्मीद लेकर गए थे जो अव्वल दिन से उनका मुखालिफ था। उन्होंने उसको खून बहा में अपनी जमीन, घर और 10 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन जालिम वडेरे ने एक बात नहीं सुनी और कहा कि खून के बदले में अगर कुछ देना है तो वनी ही दी जाए। मंसूर अहमद रोकर कहने लगे कि मुंशी उनकी बेटी ज़हरा के बाप की उम्र का है, वो कैसे ये जुल्म कर सकते हैं। एक तरफ खामोश बैठा मुंशी उठकर एकदम कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें एक रियायत दे सकता हूँ। अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहते तो फैजान साईं के निकाह में दे दो अपनी बेटी। ये सुनकर मंसूर अहमद हैरान रह गए तो मुंशी ने कहा कि उनका इकलौता बेटा ही उसकी दुनिया था, अब वो नहीं रहा तो वो पैसे का क्या करेंगे, जबकि फैजान साईं उसे अपने बेटे की तरह ही अजीज है, इसीलिए वो ज़हरा का निकाह फैजान से करते। मंसूर अहमद ये सुनकर चुपचाप वापस लौट गए। वो जब शहर पहुंचे तो ज़हरा और अपनी खाला को सब कुछ बता दिया। वो दोनों ये सुनकर तड़प उठे। ज़हरा के दोनों भाई किसी सूरत ये जुल्म करने पर राजी नहीं थे। एक तरफ बाप मजबूर था तो दूसरी तरफ मासूम बहन। मंसूर अहमद की अपनी वालिदा भी शहर पहुंच गई और बहन और बहू से हाथ जोड़कर कहने लगी कि वो उसके पोतों की जान बचा ले। ये देखकर ज़हरा का नरम दिल पिघल गया। वैसे भी उसे अपने दोनों भाई बहुत अजीज थे। वो नहीं चाहती थी कि वो भरी जवानी में ही फांसी की सजा पाले। उसने बाप से कहा कि वो अपने भाइयों के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये सुनकर ज़हरा और उसकी सास तड़प कर रह गई। दोनों भाइयों ने भी इस बात की बेहद मुखालफत की, लेकिन ज़हरा ने कहा कि वो अपने भाइयों की जान बचाने के लिए यह कीमत अदा करने के लिए तैयार है। मंसूर अहमद की माँ ये बात सुनकर
पोती के सर पर हाथ रखकर रोने लगी। ज़हरा के दिल में एक मोहम सी उम्मीद थी कि शायद फैजान उससे मोहब्बत करता है और वो गांव के दूसरे लोगों की तरह नहीं सोचेगा। चंद दिन गुजरे थे कि वो क़यामत का दिन आन पहुंचा जब वो ज़ारा मंसूर से ज़ारा फैजान बन गई। गांव से 2-4 लोग आए थे। रस्म के मुताबिक सादगी से उसका निकाह कर दिया गया। घर के मामूली जोड़े में ही उसकी रुखसती हो गई। उसकी माँ ज़हरा तड़पती रह गई क्योंकि वनी के उसूलों के मुताबिक अब दोबारा ज़हरा अपनी माँ बाप से नहीं मिल सकती थी। ना ही वो वापस आती और ना ही उसके माँ बाप उससे मिलने जा सकते थे। ज़हरा लरसते दिल के साथ गाड़ी में बैठ गई। मंसूर अहमद ने फैजान के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, लेकिन ताकत के नशे में चूर फैजान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तहरीरी वादे के मुताबिक ज़हरा के दोनों भाइयों को 2 दिन बाद रिहाई मिल जानी थी। शहर से गांव तक का सफर खामोशी से तय हुआ। उसके साथ गाड़ी में हवेली की एक मुलाजमा भी थी। हवेली पहुंचते ही फैजान उतरकर हवेली चल दिया और वो गाड़ी में ही बैठी रह गई। मुलाजमा ने बड़े रूखे अंदाज में उससे कहा, बीबी उतरो, यहाँ कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। वो गाड़ी से उतरकर मरे मरे कदमों से मुलाजमा के पीछे चलती हवेली में दाखिल हुई तो सामने ही फैजान अपनी माँ के साथ बैठा किसी बात पर हंस रहा था। उसका चेहरा चादर में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। एक मुलाजमा जो खासी तेज नजर आ रही थी वो आगे बढ़ी और उसने ज़ारा को धक्का देकर फैजान की माँ के पैरों में फेंक दिया। फिर कहने लगी, बीबी मुर्शिद को सलाम करो और आज के बाद बीबी अपने मुर्शिद से पूछे बगैर तुम कोई भी काम नहीं करोगी। ज़ारा ने उन्हें हल्की आवाज में सलाम किया तो वो जोर से बोली, मास्टर की छोरी, आवाज में दम नहीं है क्या? सुना था तेरे 4 भाई हैं लेकिन चारों बेगैरत निकले। कोई गैरतमंद होता तो खुद ही अपनी गर्दन दे देता, लेकिन अपनी बहन को दुश्मन के पास ना भेजता। ये सुनकर ज़हरा के पीछे खड़ी मुलाजमा हंसने लगी। शर्मिंदगी की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फैजान शाह भी हंस रहा था। फिर मुलाजमा ने कहा कि मुर्शिद बीबी के पाँव दबाओ। वो चुपचाप बैठी उनके पाँव दबाने लगी। एकदम से शाह बीबी ने उसे ठोकर दे मारी और कहने लगी, हाथों में जोर नहीं है, ठीक से पाँव दबाओ। ज़हरा पीछे जा गिरी और उसके सर से दुपट्टा उतर गया। फैजान की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और शिकायत भी। वो नाजुक पली थी कि उसे कभी उसकी माँ ने भी नहीं डांटा था और उसकी जिंदगी में निकाह के बाद पहले ही दिन उसका इस्तकबाल ठोकरों से हुआ था। फैजान के दिल को कुछ हुआ तो वहां से उठकर मर्दान खाने में चला गया। ज़ारा सारा दिन मुलाजमों के साथ काम करती रही। उसे खाना भी नहीं दिया गया। 11 बजते ही सब लोग अपने कमरों में जाकर सो गए। उसे रात के ढेरों बर्तन धोने का हुक्म मिला। उसकी सरपरस्ती पर खड़ी मुलाजमा को मुनासिब मौका मिला तो वो भी जाकर कहीं सो गई। भूख की वजह से उसके पेट में बल पड़ रहे थे, लेकिन वो सब्र करके पानी पीकर किचन से बाहर निकली तो हर तरफ अंधेरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाकर सोए, इसलिए वो ड्राइंग रूम में सोफे के पास ही बैठकर सो गई। फैजान अपने कमरे में जाने के लिए जब राहदारी से गुजरा तो उसने किचन की लाइट जलती देखी तो सोचा कि शायद ज़हरा किचन में होगी। दिन भर उसे देखे बिना गुजरा था, इसीलिए वो दबे पांव किचन में गया तो वहां कोई नहीं था। वो चिल्लाकर बाहर निकला और ड्राइंग रूम से होता ऊपर चढ़ने लगा तो सोफे के साथ बैठे उस वजूद पर उसकी ठोकर लगी। उसके मुंह से मगलजात का तूफान निकल पड़ा। ज़हरा को ठोकर लगने से वो ज़हरा के ऊपर ही जा गिरा। तकलीफ से जब ज़हरा की आंख खुली तो उसे कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है, लेकिन फिर महसूस हुआ कि उसका चेहरा किसी के हाथों में है और शदीद बदबू के भभके उसका इस्तकबाल कर रहे थे। उसने घबरा कर उस वजूद को धक्का दिया। फैजान जो उसकी खुशबू में मदहोश हो रहा था, ये देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसको घसीटता हुआ अपने साथ ऊपर वाली मंजिल पर ले गया, अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। ज़हरा को भी एहसास हो गया था कि थप्पड़ वाली गलती के बाद अब फिर उससे संगीन गलती हो गई। वो दिल ही दिल में अपने आप को कोसती हुई उसके साथ घसीटती हुई जा रही थी। फैजान ने उसे अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर फेंक दिया। एकदम से तेज लाइट रोशन हुई तो ज़हरा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। दिन भर की थकान थी और कच्ची नींद से उठने की वजह से उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। फैजान ने गुस्से में पेट दर पे उसको थप्पड़ मार डाले। पहला थप्पड़ इतना शदीद था कि ज़हरा के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली। फैजान शाह अगर अपने होश में होता तो उस खूबसूरत लड़की पर ऐसा जुल्म हरगिज न करता।
लेकिन वो नशे की ज्यादती और इंतकाम की आग में जलता हुआ उस पर जुल्म करने लगा। ज़ारा की चीखों से उसको दिली राहत मिल रही थी। ज़ारा इतनी खूबसूरत थी कि फैजान पहली नज़र में उसको दिल दे बैठा था। लेकिन अब हालात एकदम बदल गए थे। उसको सिर्फ ये याद था कि उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे उसे बदला लेना है। उसने फूल जैसी नाजुक लड़की को मसल डाला। ज़हरा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ये रात इतनी भयानक होगी जिस रात का सपना हर लड़की देखती है। वो रात उसके लिए क़यामत बनकर टूटी थी। फैजान एक तरफ को लुढ़क चुका था। भूख और दर्द की शिद्दत से निढाल ज़ारा कब बेहोश हो चुकी थी। उसके जिस्म पर लगे जख्म तो भर जाते, लेकिन रूह और दिल पर अनमिनट निशान छोड़ चुके थे। सुबह मुलाजमा ने ज़ारा को पूरी हवेली में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। तो वो घबरा कर बीबी मुर्शिद के पास पहुंची और कहने लगी, बीबी, वो लड़की नहीं मिल रही। उन्होंने गुस्से से सुखा की तरफ देख कर कहा, तुम रात से अकेला छोड़कर अपने आदमी के पास चली गई थी ना? मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कुछ दिन फैजान से दूर रखो, वरना वो गुस्से में उसका हशर नशर बिगाड़ देगा। रात मैंने उसकी चीखें सुनी है। मुझे नहीं लगता कि वो कमरे से बाहर निकल सकती है। ये सुनकर सुखा सर झुकाकर खड़ी हो गई। दोपहर होने को थी, लेकिन अब तक फैजान अपने कमरे से नहीं निकला था। शराब नोशी के बाद उसकी यही हालत होती थी। मुलाजमा कई बार जाके दरवाज़ा बजा चुकी थी, लेकिन ज़ारा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब रह रहकर शाह बीबी को उसकी फिक्र भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वो सुबह से कई बार सुखा को गालियां दे चुकी थी। शाम के 4 बजे जो फैजान की आंख खुली तो वो ज़ारा की हालत देखकर डर गया। उसने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बुखार में तपता हुआ उसका जिस्म जो बुरी तरह से जख्मी था, वो जरा भी हिल नहीं रही थी। शायद डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसने अपने सर पर हाथ मारकर कहा। कमरे की हालत इतनी खराब थी कि उसने फौरन इंटरकॉम पर सुखा और दूसरी मुलाजमा को बुला लिया। वो जब तक शॉवर लेकर बाहर निकल चुका था, कमरे में मेग की बोतल टूटने की वजह से काफी बदबू फैल गई थी। मुलाजमा ने जल्दी जल्दी सफाई की। सुखा ने बड़ी मुश्किलों के साथ ज़ारा का हुलिया भी ठीक कर दिया था। उसका सूटकेस शायद गाड़ी में ही पड़ा था, इसलिए उसे मुलाजमा के कपड़े पहनाए गए थे। सुखा ने जब नीचे जाकर कमरा साफ होने की इत्तला दी तो शाह बीबी भी कमरे में चली आई। उन्होंने ज़ारा की तरफ देखा और गुस्से से बेटे से कहा, तुम तो कहते थे कि इसे पसंद करते हो, हाल तुमने इसका जानवरों से भी बदतर कर दिया है। कितनी बार कहा है कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम इतना नशा करो कि तुम्हें होश हवास ही न रहे, मगर अपने बाप की तरह कभी मेरी ना सुनना। फैजान शाह सर को नीचे झुकाए बैठा था। वो अपने बाप के कारनामों की वजह से हमेशा यही सोचता था कि वो ऐसा वडेरा नहीं बनेगा, लेकिन बाप की शह पर और बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से वो खुद उसी माहौल में रंग गया था। और कुछ तालीम की कमी भी थी। उसकी माँ उसे बुरा भला कहकर जा चुकी थी। हवेली का डॉक्टर बुलाया जा चुका था। वो चोर नजरों से ज़ारा के सरापे की तरफ देख रहा था तो फैजान ने महसूस कर लिया और उसे शदीद गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ बोलने से गुरेज किया क्योंकि गलती उसकी अपनी थी। फैजान ने जब गुस्से से डॉक्टर की तरफ घूरा तो डॉक्टर भी कुछ समझ गया और जल्दी जल्दी ज़ारा को ड्रिप लगाकर इंजेक्शन लगाने लगा। डॉक्टर जा चुका था। ज़ारा को जैसे ही होश आया वो अपनी माँ को पुकार कर रोने लगी। कमरे में कोई नहीं था। फैजान उसकी ड्रिप पूरी होते ही कमरे से जा चुका था। ज़ारा की आवाज़ पर एकदम से खिड़की खुली जो कि बाहर की तरफ खुली थी। उससे तेज हवा का झोंका अंदर आया। हवा के साथ ही एक लतीफ़ जिस्म भी अंदर आया था। रात भर उस मासूम लड़की की चीखों की वजह से वो बेचो ताप खा रहा था, लेकिन अपनी जगह पर मजबूर था, इसीलिए चाह कर भी उस लड़की को बचाने के लिए नहीं आ सकता था। वो बरसों से उस हवेली का मुकीम था। अपने सामने उसने बहुत से मजलूमों पर जुल्म होते देखा, लेकिन वो अपनी माँ की दी हुई कसम के हाथों मजबूर था। फैजान शाह के दादा ने हवेली में रहने वाले जिन्नात से वादा लिया था कि वो कभी उसके खानदान के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो एक नेक इंसान थे, लेकिन सिवाय उनके एक बेटे के तीनों बेटे गलत राहों पर चल निकले। अरसा दराज हो चुका था, लेकिन फिरोज अपनी माँ की कसम नहीं तोड़ सका। फिरोज ने बेख्तियार होकर ज़ारा के चेहरे को छुआ। किसी का लम्स महसूस करके ज़ारा ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। उसे लगा कि फैजान शाह फिर वापस आ गया है। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली।
لیکن اس کے پاس بیٹھے ہوئے فیروز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زارا حیران تھی کہ یہ کون ہے اور اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ فیروز کے چہرے پر پھیلی ہوئی نرمی دیکھ کر زارا ایک بار پھر سے رونے لگی۔ فیروز نے پیار سے پوچھا، زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کو؟ تو زارا معصومیت سے کہنے لگی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر فیروز نے اپنی نظریں پھیر لی اور کہا، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا، اور جیسے ہی اٹھ کھڑا ہوا ایک دم زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ شاید وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ زارا نے بچوں کی طرح اس سے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ مجھے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ امی سب سے پہلے مجھے کھانا دیتی تھی، لیکن یہاں تو کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ آنسو اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ فیروز مسکرانے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے اس کا پسندیدہ کھانا حاضر کر دیا۔ زارا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن فیروز نے اسے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جلدی جلدی سے کھانا کھا لو پیاری لڑکی، ورنہ کوئی آ جائے گا۔ زارا نے بھی بات کو سمجھ لیا اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد زارا نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس حویلی میں رہنے والے انسان تو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ وہ کم عمر سے لڑکی ایک ہی رات میں اتنی سمجھدار ہو گئی تھی۔ فیروز نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اس حویلی میں رہنے والا جن ذات ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر زہرا ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آ گئی۔ ایک ہی پل میں فیروز وہاں سے غائب ہو گیا۔ زارا الجھ کر رہ گئی۔ ملازمہ نے اسے پوچھا، بی بی کھانا لے کر آؤں؟ تو زہرا نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، مجھے بھوک نہیں۔ ملازمہ کے واپس جاتے ہی ڈریسنگ کے آئینے میں فیروز کا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ وہیں سے مسکرا کر زہرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زارا کو ڈر لگنے کی بجائے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا۔ کچھ دیر وہ زارا سے باتیں کرتا رہا، پھر اسے یہ کہہ کر کہ تم سو جاؤ، ہوا کے جھونکے کی طرح اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ زارا نیند میں بھی اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ فیضان اس کے پاس بیٹھا بہت دیر سے اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ پہلی نظر میں اسے یہ لڑکی بہت الگ محسوس ہوئی اور اسی لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن شاید اس کا طریقہ غلط تھا۔ اس کا دل زارا کے لیے نرم پڑا، لیکن پھر اسے یاد آ گیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ یہ سوچتی اس کے ماتھے کی نسیں پھول گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زارا کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ 1 ہفتے بعد حویلی واپس آیا تھا۔ شاہ بی بی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ زارا کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، اسی لیے وہ شہر چلا گیا تھا، لیکن اس کے بابا سائی نے اسے فون کر کے واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جابر علی نے اپنے بیٹے کو تانا دیتے ہوئے کہا، بس ہو گیا تمہاری دشمنی کا شوق پورا۔ میں اتنے برسوں سے منصور احمد کو اپنے سامنے گڑ گڑاتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اب اگر قدرت نے یہ موقع دیا ہے تو تم تو عورتوں کی طرح منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ بابا کی باتیں سیدھی اس کے دل پر جا لگی۔ ایک طرف ماں کی نصیحت تھی، دوسری طرف بھاپ کے دھتکار۔ وہ فوراً حویلی پہنچ گیا۔ زارا اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈری سہمی بیٹھی تھی اور اس کے حکم کا انتظار کرنے لگی تھی۔ فیضان کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کہا، جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، لیکن یاد رکھنا چائے بہت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ زارا فوراً بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچی اور چائے چڑھا دی۔ جیسے ہی واپس پلٹی اس کے سامنے فیروز کھڑا تھا۔ زارا کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے دوست کہتی تھی۔ وہ زارا سے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں چائے بن گئی تو زارا چائے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فیضان اسے دیکھتے ہی چیخنے لگا اور کہنے لگا، چائے بنا رہی تھی یا پائے؟ اتنی دیر میں کون چائے بناتا ہے؟ زارا چپ چاپ کھڑی تھی۔ فیضان نے چائے کی کھونڈ بھری تو چائے بہت اچھی بنی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر چائے کا کپ اٹھا کر زارا کے اوپر انڈیل دیا۔ گرم چائے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اور جسم جل اٹھا اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ اس کی چیخیں ہی فیضان اور اس کے باپ کو سکون دیتی۔ فیضان اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور فیروز پھر سے آ گیا۔ اس نے زہرا کے ہاتھ اور پاؤں پر مرہم لگا دیا، جس نے ایک دم زہرا کو سکون بخشا۔ زہرا روتے ہوئے اسے شکوہ کرنے لگی کہ آپ کیسے جنزاد ہیں جو مجھے ظالم سے بچا نہیں سکتے۔ وہ فیروز سے بھی سخت ناراض تھی۔ فیروز کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے۔
वो खामोशी से वहां से उठा और गायब हो गया। दिन यूं ही गुजर रहे थे। हर रोज किसी न किसी बात पर फैजान उस पर तशद्दुद करता, लेकिन शाह बीबी ने अब उसे परेशान करना छोड़ दिया था। हर वक्त अपने घर को याद करती और रोती रहती। एक रोज हवेली में हलचल मच गई, क्योंकि फैजान के बड़े चचा जो कभी कभार हवेली आते थे, उनकी आमद का शोर उठ गया था। ज़ारा हैरान थी कि वो सभी लोग उससे डरे सहमे नजर आ रहे थे। उसने सोचा कि शायद वो उससे भी ज्यादा जालिम होंगे। वो घर के काम काज में मुलाजमाओं का हाथ बटा रही थी। शाह बीबी काफी परेशान थी। शाम असर के बाद जब वो हवेली में पहुंचे तो ज़ारा चुपकर किचन से उन्हें देख रही थी। उनके पुरनूर चेहरे पर गुस्सा फैला था। वो सफेद कपड़ों में मलबूस थे और शानदार शख्सियत के मालिक थे। उनके तीनों छोटे भाई उनके सामने ऐसे बैठे थे जैसे कोई मुजरिम बैठा हो। उन्होंने फौरन फैजान की वालिदा से कहा, मुबारक हो भरजाई, बेटे की शादी कर दी और बताया भी नहीं। वो तंज़िया अंदाज में भाई और भाभी की तरफ देख रहे थे। ये सुनते ही वहां बैठे सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि यह खबर गांव वालों में भी ना फैले कि मास्टर मंसूर अहमद की बेटी वनी में उनके घर आई है। शाह बीबी ने यह सुनते ही परेशानी से फैजान और उसके बाप की तरफ देखा। रजब शाह के चेहरे पर शदीद गुस्सा था। उन्होंने सख्ती से फैजान के वालिद से कहा, अगर छोटे गलत काम करें तो बड़ों का फर्ज है कि उन्हें सही रास्ता दिखाएं। अगर वो जुबानी कलामी ना समझे तो बड़े उन्हें सजा भी दे सकते हैं। ये हमारे बाबा मुअज्जम शाह की हवेली है और लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तुम तीनों भाइयों को ये बात याद रखनी चाहिए कि बाबा जरूर चले गए, लेकिन मैं फिलहाल जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ अपने पुरखों की इस हवेली में किसी मजलूम की आह या बद्दुआ लेना नहीं चाहता। अगर तुमसे जिम्मेदारी नहीं संभलती तो मुझे कहो, मैं गद्दी निशीनी छोड़कर वापस हवेली आ जाता हूँ। वो अक्सर सालों बाद आते और हमेशा यही ताकीद करके जाते कि किसी मजलूम के साथ नाइंसाफी ना की जाए। उन्होंने फैजान की तरफ रुख करके कहा, अगर तुम उस बच्ची को अपनी इज्जत बनाकर हवेली में रख सकते हो तो बताओ, वरना मेरी मौजूदगी में उसे उसके घर भेजकर आजाद कर दो। वैसे भी मुंशी करमदीन के बेटे के खून बहा में आने वाली लड़की इस हवेली में क्या कर रही है? मेरी समझ से बालातर है। फैजान अपने बाप की तरफ देखने लगा। जाबिर अली ने कुछ बोलने की कोशिश की तो रजब शाह ने सख्ती से उसको खामोश रहने का इशारा किया और फिर बोला कि ये मामला जबरदस्ती निकाह का है। मैं बच्ची से उसकी मर्जी पूछना चाहता हूँ। अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो ठीक, वरना मैं खुद उसे उसके घर छोड़ जाऊंगा। फैजान शाह के चेहरे पर एकदम से जर्दी फैल गई, क्योंकि वो दिल से ज़ारा को चाहता था। रजब शाह ने ज़ारा से उसकी मर्जी पूछी तो वो रोते हुए कहने लगी कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती। रजब शाह ने उसे अपने साथ चलने को कहा। फैजान शाह की पुरुम्मीद नजरें ज़ारा पर टिकी थी, लेकिन ज़ारा ने उसकी तरफ से नजरें फेर ली। ये कैसा रिश्ता था जिसमें एक दिन भी वो अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सका। ज़ारा को उसके घर छोड़कर वापस आने के बाद रजब शाह ने फैजान और उसके वालिद से कहा, मुंशी करमदीन इस हवेली का पुराना नमकखोर है। तुम दोनों को शर्म नहीं आई उसके जवान बेटे को मौत के घाट उतारते? फैजान इस बात पर चौंक कर बाप की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो इस चीज से ला इल्म था कि मुंशी का बेटा साबिर मंसूर अहमद के बेटे के हाथों कत्ल नहीं हुआ। जाबिर अली शाह बहुत शर्मिंदा था। फैजान ने नफरत से अपने बाप को देखा और उठकर वहां से चला गया। रजब शाह ने मुंशी करमदीन को बुलाकर उसे भी हकीकत से आगाह कर दिया तो वो रोता हुआ जमीन पर बैठ गया। रजब शाह ने जब उससे उसकी मर्जी पूछी तो उसने रोते हुए जाबिर अली को माफ कर दिया और कहने लगा, साईं, साबिर मेरा अकलौता सहारा था और मेरे जीने की आस था। मुझे क्या मालूम कि साईं ने खुद ही मेरी दुनिया उजाड़ी है, लेकिन मैं बड़े सरकार के सदके और इस हवेली की इज्जत के सदके साईं को माफ करता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे अपने साथ ले जाएं। 2 ही रोज में तमाम मामलात निपट चुके थे। रात को रजब शाह अपने वालिद के पुराने कमरे में बैठे माजी की बातें याद कर रहे थे कि फिरोज ने उनसे हाजिर होने की इजाज़त मांगी। फिरोज और उसका ख़ानदान बरसों से उस हवेली में रहता आया था। उनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से था। फिरोज ने ही उनको हवेली के मामलात से बाखबर किया था। फिरोज ने उनसे वादा किया कि वो आइंदा भी हमेशा हवेली की हिफाजत करेगा और रजब शाह को मामलात से बाखबर रखेगा। ज़ारा के दोनों भाई बहुत खुश थे ज़ारा की वापसी पर।
زارا روز فیروز کا انتظار کرتی لیکن وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ زارا کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر منصور احمد اور ان کی بیوی زہرا بہت پریشان ہو گئے۔ اب تک وہ فیضان شاہ کے نکاح میں تھی کیونکہ زہرا نے منع کیا تھا کہ جلد بازی میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ منصور احمد نے دل پر پتھر رکھ کر فیضان شاہ کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ شام سے پہلے شہر پہنچ گیا اور اپنے ساس سسر کے سامنے بیٹھ کر ان سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ زہرا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زہرا نے زارا کی مرضی کے بنا کوئی بھی قدم اٹھانے سے منع کر دیا۔ زارا اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی کہ فیروز وہاں چلا آیا۔ زارا اس سے ناراض تھی لیکن فیروز نے بتایا کہ وہ کسی ضروری مسئلے میں پریشان تھا۔ اس نے زہرا کو سمجھایا کہ ایک بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا پیار بہت ضروری ہے۔ فیضان اب بہت بدل چکا ہے، اسی لیے وہ اس سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کرے بلکہ حویلی میں واپس چلی جائے۔ فیروز نے زارا سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی میں کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ اس کا دوست بن کر اس کے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے گا۔ شام کو زہرا نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر فیضان اسے واپس لے کر جانا چاہتا ہے تو پوری عزت اور احترام کے ساتھ دوبارہ اپنے خاندان والوں کے ہمراہ آ کر اس کو رخصت کروا کر لے جائے۔ زہرا اپنی بیٹی کے فیصلے پر بہت خوش تھی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ فیضان خوشی خوشی اپنے پورے خاندان کے ہمراہ زارا کو رخصت کروا کر لے گیا۔ وہ دونوں ایک بھرپور زندگی گزار رہے۔ گاؤں کا ایک ظالم وڈیرا ونی میں آئی لڑکی کی محبت میں سر سے پیر تک بدل گیا اور شاہ جنات کا بیٹا جو دل ہی دل میں اس پر فدا ہے وہ ہمیشہ اس کا دوست بن کر اس کا ساتھ دیتا آ رہا ہے۔ زہرا کی دونوں جڑواں بیٹیاں ہیں۔ فیضان نے گاؤں میں بچیوں کے اسکول بنوا دیے ہیں اور اپنی دونوں شہزادیوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ فیروز بھی زہرا کو دیکھ کر بے حد خوش ہے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا،